Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Dear students, our topic is statistics. And remember, in statistics, we are basically the statistics is a very vast topic. But over here, we are going to discuss few subtopics in statistics according to your syllabus. Okay, and that Okay, is sir. I have already mentioned. I have already mentioned over here that we will discuss about some quartiles. We will discuss about some quartiles here and learning outcomes to understand quartiles, frequency polygon, and cumulative frequency graph. So, students, I hope you are ready with this topic, with this subtopic of statistics. Okay, number one slide I'm going to show, and then we will continue. Okay, students, look at this. Statistics. Frequency. First of all, we have to understand what is the term quartiles means, and then we will continue. Later on, we will study about frequency polygon, as you can see over here, and cumulative frequency graphs. So, students, let's move on to the topic. Look at student, you can see some graduate students over here, and inshallah, you will be also one day will be graduated. My prayers are always with you. It is written, suppose that we line up everyone in the school according to height. Are you getting? And then you know that we already know that the median would be the middle person's height. Are you getting? The median, what is the middle person who is standing in between is the median uh, of that particular data, whoever is standing. Because first of all, important thing is they all are standing in according to their height. If they are not standing according to their height, we will not be able to find out the middle person value, the value of the middle person. It always comes when we have arranged all data in sequence. So this is in ascending order, small to big. Or you can also do it with big to small. Both are the same. If you start with the bigger height from here and then small, then small, then small, again this person will come in between. Adil, are you getting my point? Yes, sir. Good. Hope you are also enjoying this lesson and presentation along with Shazib. So, dear student, so far we have concluded that whether we arrange data in ascending order or descending order, we will find the same middle value. Okay, now middle value basically is the 50%, 50% of the people in the school would have a height less than them, because we can see that 50% students are having height less than this person, because this person is standing in the middle. Hope you are getting my point. Yes, Adil and Shazib. सर ये समझ नहीं आया जो 3% 50% कैसे होगा? देखो, ये जो अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, ये इस सारे डेटा का 50% तो है ना। आधे लोग तो इधर ही है ना, और आधे लोग इधर हैं, तो इसको मैं इस डेटा का 50% कह देता हूँ। फिर 50%, फिर देखो, फिर 50% यहाँ से शुरू होगा, आगे तक जाएगा तो ये 100% हो जाएगा।
तो ये जो फर्स्ट का 50% है, इसके अंदर भी हमने हाफ ढूंढना है। इस पहले का 50 का भी हाफ अगर मैं ढूंढूंगा ना, तो अब देखो मुझे क्या मिलने वाला है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो मिडल वाला है। ये देखो, अब इस 50 का भी आधा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? The height of the person 25% along the line is known as lower quartile. मीडियन, लोअर ठीक है, क्वार्टाइल। हाँ वो मीडियन ही है। वो फर्स्ट डेटा जो है ना 50 का, उसका जो मीडियन है वो आपका लोअर क्वार्टाइल कहलाता है। अब आप खुद बता दो अपर क्वार्टाइल क्या होगा? सर वही जो शुरू के जो हाइट वाले हैं, बड़ी हाइट वाले हैं, उनका जो मीडियन होगा वो अपर क्वार्टाइल। शुरू की हाइट वाला मीडियन होगा ना, जो वो लोअर हाँ, है। उनका अपर क्वार्टाइल। जो बाद वाला देखो भी क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ मतलब जो ये जो हाइट वाले, बड़ी हाइट वाला है, हाँ हाँ, हाँ इनका अपर क्वार्टाइल होगा ना। इसका मीडियन जो होगा ना वो 75% हो चुका होगा। जाहिर है 50 में 25% और ऐड करो तो कितना होता है? 75। 75% होता है ना। 75% along the data। यहाँ तक बात समझ आई तो आगे बढ़ूं। Now जी we सर। have understood what is lower quartile and what is upper quartile. Lower quartile is the 50% of first data. Median of the 50% of the data means 25%, and upper quartile is the 75% of the data, or you can say the half of the rest of the data, median of the half of the rest of the data after that. Okay, अब इसको कम लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपने मुझे इन सब बातों के जवाब देने हैं। मैंने ये चीज आपको एक ऐसी लाइन बना के दिखाई है कि मीडियन होता है 50%, उस मीडियन का भी मीडियन अगर निकालो तो लोअर क्वार्टाइल होता है, और आगे वाले मीडियन पोजीशन का मिडल अगर निकाल दो तो अपर क्वार्टाइल होता है। अब बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब आप मुझे बताएं पहली फिलिंग द ब्लैंक में क्या आने वाला है? लोअर क्वार्टाइल आएगा सर। 50% of the data has a value more than median. मीडियन बेटा 50% of the data has 50% है। 50% ना। अब now you tell me 75% has a value less than the अपर क्वार्टाइल। upper quartile, 25% लोअर। lower। ये अपर कैसे? सर अपर ये हो गया अपर ना। लिखा हुआ 25% of the data has a value more than upper quartile। 25%। हाँ सही है। अपर क्वार्टाइल से आगे देखो ना, 25% नजर आ रहा है ना। अच्छा अपर क्वार्टाइल से आगे। अपर क्वार्टाइल से आगे 25% है ना। हाँ। अब इसका बताओ 75% डाटा हैज अ वैल्यू मोर देन दी, मोर देन 75% data has the value more than the क्या आएगा? median होगा सोच के सर। बताना। सोच के बताना, सोच के। 75% of the data has a value more than the median हो सकता है सर। 75% of the data has a value more than लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल से लोअर आगे क्वार्टाइल देखो, होगा। पूरा आगे 75% है ना 25 ये। 75%। हाँ सब समझ आ गया सर। अरे यार इतने, चलो इंटरेस्टिंग था वैसे, हैं? इंटरेस्टिंग था कि नहीं? दोबारा पढ़ो। अब आप दोबारा बताओ मुझे क्या होगा। चलो परसेंट ऑफ द डेटा हैज अ वैल्यू मोर देन द मीडियन। ये तो सही है। ठीक है, अब इसका समझ बताओ। ये आ गया सर। इसका बताओ फटाफट। अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल है, चलो गुड, आगे बताओ। 25% डेटा हैज अ वैल्यू, ये भी अपर क्वार्टाइल ही है। क्या अपर है ये? क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल है। चलो इसका बताएं जरा जल्दी से। ये लोअर क्वार्टाइल। चलो भाई, मुबारक हो। नाउ दिस इज योर चॉइस। Do write down these values in your copy
or later on you can write down, because you can also take the picture and you can watch video on my YouTube channel. It will be uploaded soon, but here we are for the learning purpose. Now, first of all, tell me, here are the ages of 10 people in a party. Now you can see all datas are arranged in ascending order. It means now you are able to, this data is able to give you median and quartiles. Understand? So can you tell me what is the median? Because we are going to vote now. What is the median? 15, 15.5 or 16? 15.5. How? अरे आपने 15. इस डेटा में से ढूंढना मीडियन क्या है? तो ये 1 2 3 4 4 यहाँ से अलग, 5 अलग करो, यहाँ से 5 अलग किए, यहाँ से 1 2 3 4 5 की अलग यहाँ से, तो मीडियन तो बीच में आ गया, इसके 15 और 16 के बीच में आ गया। 15 plus 16 divided by 2. हाँ, डिवाइड बाय 2, तो 15 में तो वोट कर देते हैं। फिर वोट किसको करूं मैं? 15.5. ओह 15 बिल्कुल। इन दो बीच में मीडियन आ गए हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देना है हमने, डिवाइड, तो हमारा मीडियन आ जाएगा 15.5। अब लोअर क्वार्टाइल वोट करो भाई, लोअर क्वार्टाइल क्या आएगा? 13, 13.5 या फिर 14? 13 plus 14 divided by 2. तो किसको क्लिक करूं ये बताओ, क्लिक किसको करूं ये बताओ। 13. अरे भाई ध्यान से फिर सोचो, इसका मीडियन क्या आएगा? इसके बीच में 2 नंबर है, 13 और 14। 13 और 14 को प्लस करके मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 13.5 13. सही बोल रहा था ना। 13.5, ये इसको तो हटा देते हैं ना, हमने तो 13.5 को किया हुआ। अच्छा लो, अपर क्वार्टाइल बताओ आप जल्दी से। अपर क्वार्टाइल आप बताएं। 18 होगा सर। बेटा बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, 2 का मीडियन क्या होगा? 18 सर, 18। हाँ 18 होगा। अब हम एक काम करते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज बतानी है आपको। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है कि अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल आप माइनस करो। तो आप बताओ, अपर क्वार्टाइल में से मैं लोअर क्वार्टाइल माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 4.5। 4. अपर क्वार्टाइल कितना है भाई? सोचो अपर क्वार्टाइल कितना आ रहा है? अच्छा, अब रेंज जो है ना, वो रेंज जो आती है वो जो मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर माइनस कर दें तो रेंज आती है। सॉरी, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर इस डेटा में आपको क्या नजर आ रहा है? 24। उसको डिवाइड कर देंगे। नहीं, दोबारा सुनो ना। अभी मैं अपर इंटर क्वार्टाइल रेंज में बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो इस सवाल में सब मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है? 24। और मिनिमम क्या है? 12। 24 माइनस 12 करो, आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे रेंज के लिए। मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो 12। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे आती है? अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल हम माइनस कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ अपर क्वार्टाइल क्या होगा? इस सवाल को हम दोबारा करते हैं कि हमारा अपर क्वार्टाइल कितना आ रहा है। अपर क्वार्टाइल हमारा कितना आ रहा है? ये देखो, अपर क्वार्टाइल हमारा ये आ रहा है कि मैं ये 5 पकड़ लूं, ये वाले 5, ये देखो गौर से देखो, ये 5 अगर मैं पकड़ लूं, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ से भी पकड़ लूं 1 2 3 4 5, तो अब इसका मीडियन यहाँ पर है, इसका मीडियन क्या है? 17। हाँ। और इस पहले वाले को 5 पकड़ो तो इसका मीडियन क्या है? 14।
17 माइनस 14 कितना होता है? 3। वेरी गुड। तो 17 में से हमने क्या माइनस कर दिया? 14। तो हमारा क्या आ गया? इंटर क्वार्टाइल रेंज। सर जो हमने 13.5 और 18 निकाला था वो गलत है। कौन निकाला था हमने? 13.5 और जो 18 निकाला था। असल में जो हमने मीडियन निकाला था असल में, कि मीडियन क्या है। मुझे लग रहा है कि इस सवाल के अंदर जो हमने हम लोअर क्वार्टाइल हमने चेक किया है ना, जो लोअर क्वार्टाइल, तो ये होता है कि हम मीडियन का भी मीडियन निकालते हैं। हाँ सही। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आ गया ना 14। सही है, सही सही। अच्छा, अब देखो मीडियन का भी मीडियन पहले बार। अब इसका मीडियन क्या होगा? 17। अब देखो ये क्या है? ये देखो 17 आ गया। सही आया है। कि नहीं आया? तो हमारा लोअर क्वार्टाइल आ रहा है 14। डेटा को हमने अलग से निकाल दिया। लेकिन अगर मैं इस पूरे डेटा का मीडियन निकालूंगा तो वो तो 15.5 ही आएगा मेरे पास। हाँ वो सही है। वो सही है। और फिर लेकिन जब जब लोअर क्वार्टाइल निकाले निकालेंगे ना, जब हम लोअर क्वार्टाइल निकालेंगे तो पहले वाला डेटा पकड़ लेंगे, आधा उसका हाफ 14 और इसका हाफ 17। इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। समझ में आई बात? अब रेंज बताओ, रेंज कैसे आएगी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए भैया, हम आगे बढ़ते हैं। हम इस डेटा को जरा ध्यान से पढ़ना है और वोट करना है, और फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। रूल फॉर लोअर क्वार्टाइल। इवन नंबर अगर हो, फाइंड मीडियम ऑफ बॉटम हाफ। ऑड नंबर हो, थ्रो अवे मिडल टर्म, मिडल आइटम, फाइंड मीडियम ऑफ द रिमेनिंग। जाहिर है जब बीच में दो आ जाएंगे तब उनका भी हाफ निकालना पड़ेगा, और जब ओड होता है तो फिर हमारे पास एक ही आता है। तो ये ओड है या इवन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दीज आर 13 नंबर्स ओड। तो इसका मतलब है इनका एक ही मीडियन आएगा बीच में। तो वो क्या होगा, कौन बताएगा? 13। 13 आएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से गए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से गए, तो 13 आ गया। ये लो भाई, 13 आ गया। अब बताओ लोअर क्वार्टाइल क्या है? लोअर क्वार्टाइल क्या है? जरा ध्यान से बताना है अब आपने। 7। सोच लो। भाई पहले तो वो था ना हमारे पास, इवन था ना। 6.5। पहले तो हमारे पास 6.5 है। इवन था ना। अब बताओ अच्छा, क्या आएगा? 6.5। चेक करते हैं भाई। 6.5। जाहिर है इसका पहले दो आ रहे थे तो फिर हमने पूरा डाटा उठाया था, लेकिन अब एक है तो हम पीछे वाला सारा डाटा उठाएंगे। आप बात समझ में आ गई? जी। अच्छा, अब आप बताओ अपर क्वार्टाइल क्या होगा? 24.5। 24 इंटर क्वार्टाइल रेंज बता दो फटाफट। तो 6.24.5 माइनस 6.5। 24.5 माइनस 6.5 तो क्या मिला मुझे? 18 सर। 18 मिल गया। अब रेंज बता दो जी फटाफट। 2। रेंज रेंज क्या आएगी? 52। 52। करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। चले भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है और डाटा सारा रेंज दिया हुआ है। क्विक फायर राउंड है हमारा ये। कौन सा राउंड है हमारा ये? क्विक फायर। क्विक फायर राउंड है। यहाँ पर फायरिंग होगी, जरा बच के रहना। अब इन्होंने वही रूल दोबारा लिख दिया है हमने। इवन में होंगे तो दो लेंगे, ऑड में होंगे तो हमारा एक ही आंसर आएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, जरा मुझे बताइए लोअर क्वार्टाइल क्या होगा इस डेटा के अंदर? सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 1। क्या होगा? 1।
1 कैसे होगा, एक्सप्लेन तो करो पहले। सर लोअर क्वार्टाइल है ना, जो मीडियन है वो 2 है, तो 0.25 1 है। तो हम तो लोअर क्वार्टाइल में ये बोलते हैं ना कि लोअर क्वार्टाइल ये होता है कि जो मीडियन से पहले का है उसका भी मीडियन जी सर। 1.25 है। क्या बोल रहे हो भाई? चलो पहले एक काम करते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन क्या आ रहा है, चलो बताओ। 2 है। चलो मान लिया 2। अब बताओ लोअर क्वार्टाइल के। भाई वो तो पूरा डेटा है, उसका भी मीडियन कैसे निकलेगा, उसमें तो पीछे डेटा ही एक है, तो क्या करूंगा मैं? नहीं होगा फिर सर, क्या होगा? 1 है सर। वाह, अब आपने रीजन नहीं बताया, रीजन बताओ तो मैं मानू ना कुछ। 1 है इसलिए क्योंकि मीडियन का उसका भी मीडियन है। क्या ये मीडियन ही है? आइए चेक करते हैं। 1, वेरी गुड। और अपर क्वार्टाइल। चलो भाई इसका बताओ, मीडियन बता दो सबसे पहले। मीडियन क्या होगा? 2 और 3 हो गए। 2.5। चलो, और आप बताएं, आप जरा तवज्जो से। लोअर क्वार्टाइल 1.5 0.5 और होता है। 3.5। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपने यहाँ से पकड़ के इसको अलग करना है, तो ये बचेंगे 2, तो 2 का हाफ और फिर इसका हाफ। इसका बताओ जल्दी से, मीडियन बताओ पहले। 3 और लोअर क्वार्टाइल 2 हैं? 2 0.5 ही लोअर होगा। क्वार्टाइल क्या होगा? 1.5 अरे 1.5। तो अपर क्वार्टाइल क्या होगा? 3.5। 4.5। ओ सॉरी, 4 + 5 4.5। अच्छा, इसका मीडियन क्या होगा? 3.5। यार इतने स्मार्ट हो गए, वैसे पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए। चलो लोअर क्वार्टाइल। 2 और अपर क्वार्टाइल। 5। 5। बड़ा आपने सही फायरिंग की है, क्विक फायर राउंड में आप पास हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर से मुलाकात कर लीजिएगा। ओके आगे चलते हैं भाई। व्हाट, ओके, व्हाट इफ देयर इज अ लॉट ऑफ आइटम्स? ओह, what if there are lot of items? There are 31 items in order of value. What item should be used for the median and upper quartile range? तो बेटा तवज्जो चाहूंगा, जो हमारा डेटा दिया होता है ना, सरताहा मेरे साथ मौजूद है और वो रहनुमाई भी कर रहे हैं और इस डेटा को देख भी रहे हैं, और वो मजीद इसमें जो है ना वो अपने इनपुट भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत इसमें मुतमिन हूँ कि देखें, अगर बहुत सारा डेटा दिया हुआ, अब आपको बोला जाए इसका लोअर क्वार्टाइल निकालें, मीडियन निकालें, तो देखो अगर आप गौर से देखो ना, तो ये अपर क्वार्टाइल पता है कितना होता है? अपर क्वार्टाइल ये 75% है। 75% का मतलब होता है 3/4। यानी मैं यूं कर सकता हूं कि जब मैं मीडियन निकालता हूं तो मैं n+1/2 करता हूं। मैं 1/2 क्यों कर रहा हूं n+1 को? इसलिए कि मैं मीडियल के मिडिल टर्म बता रहा हूं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? हाफ कर रहा हूं, समझ में आ रही बात? यानी मैं मीडियल वैल्यू निकालता हूं तो n+1 जो है ना, n+1 n का मतलब होता है टोटल नंबर। अब इस बताओ टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर? 31। 31 में +1 करो कितना होता है? 32 डिवाइड बाय 2। 32 को अगर मैं हाफ करूंगा तो मैं मीडियन निकाल लूंगा। 16। अच्छा, और अगर मैं उसको 25% निकालना चाहता हूँ, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल 25% होता है, तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3/4। ओ तेरी की, ओ नहीं नहीं नहीं, 3/4 तो वो है, 75% है। ओ सॉरी, हाँ, क्या लिखेंगे? 2 और 0.5/2। अरे भाई बात सुन लो ना मेरी, हम लिखेंगे 1/4। 1/n + 1।1/4 सॉरी। n+1 तो हो गया ना। सुनो, अब मेरी बात सुनो, 32 को डिवाइड चेक करते हैं जरा। मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है आपको? जी सर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मीडियन क्या आ गया मेरा बेटा, बोलो? 14 14 आ गया मेरा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी n+1 को यानी 32 को मैं 1/4 से डिवाइड करने वाला हूं। तो 32 को जरा 4 से डिवाइड करना, 8 आएगा। 8वीं पोजीशन पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वो 6 आ गया मेरे पास। लोअर क्वार्टाइल। नोट करते जाओ। हाँ नोट कर। अपर क्वार्टाइल क्या होगा? 3/4। 3/4 का मतलब होता है ना 75%। जी सर। तो 3/4 4 8 32। तो 8 को मल्टीप्लाई करो 8 को 3 तो 24। तो इसमें 24 पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है? 1 2 3 16 में तो ये आ गया था ना, ये। तो 30 कितना लाना है? 38 पे आ रहा है। नहीं 24 लाना है ना, सुनो तो सही। 24 लाना है ना? जी सर। हाँ तो ये कितने नंबर पे है? 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो क्या आ रहा है? 37। अरे आप चेक करते हैं, ये देखो क्या आ गया। अरे 1/4। 1/4। और ये क्या मिला? 16। अरे 1/2। और ये क्या मिला? Wow, wow, great. Hope you have really enjoyed this activity. I really thank to Sir Taha, who was with me at that time, and I was making the formulas for this, and he helped in this formula to make the question more easier for you. So with his help, I told you about this, that the 1/2, sir is saying that tell the student it should be half. So that everyone should get that we can get the value half. So thank you, Sir Taha, for this special assistance at the particular moment. I really thankful to Sir Taha. Okay, now move to the other slot for this. Now this is your test. What if there is a slot of numbers? अब बात ये हो गया बेटा, नंबर आइटम्स क्या है? नंबर आइटम्स क्या है कि 15 23 39 47। तो मेरे दोस्तों बताओ, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल बता सकते हैं? जी सर। सवाल समझ आ रहा है? जी जी। तो आप बताएं जरा, मीडियन क्या होगा? चलो इतना बता दो। मीडियन होगा सर 8। मीडियन क्या होगा? 8। कैसे? 0.5 प्लस है 15+1 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा? नहीं, वो +1 तो डिवाइड बाय 2। मिडिल पोजीशन तो नहीं पूछ रहा मेरे ख्याल से। क्या पूछ रहा है सर वो तो फिर 8 ही होगा ना सर, पोजीशन पूछ रहा है ना सर। अच्छा पोजीशन पूछ रहा है। ओके ओके ऑल राइट। अच्छा लोअर क्वार्टाइल में कौन सी पोजीशन आएगी? 4। अरे वेरी गुड वेरी गुड। नो यू आर, आप देख रहे हैं कि आपका माइंड जो है वो काफी अपडेट हो गया है और उसमें बड़ी स्मार्टनेस आ गई है। मैं पहले कहता था कि आप ए ग्रेड कि आप ए ग्रेड स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी असिस्टेंट और चाहिए होगी आपको। थोड़ा सा फोकस करेंगे इंशाल्लाह ये स्टार्ट तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। 12 है सर। नहीं मैं बिल्कुल हकीकत बात कर रहा हूँ। आप ए ग्रेड स्टूडेंट हैं और आपको मैं चाहता हूँ कि आप इतनी एफर्ट करेंगे। आपको मेंटल मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो गया है पहले से ज़्यादा। ऑनलाइन क्लासें आपने इतनी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासें ली हैं और ऑनलाइन पे आप मेरे साथ रहे, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप थोड़ी सी एफर्ट और करें, इंशाल्लाह आप ए स्टार स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम आगे बढ़ते हैं और वो ये बढ़ते हैं हम कि अपर क्वार्टर जरा बताएंगे आप क्या आ रहा है? 12 चले वेरी गुड। आप इसका बता दें 23 पे। तो मीडियन सर 12 है।
मीडियन 12 है, ठीक है। 6 से और लोअर क्वार्टाइल कितना है? 6 है। लोअर क्वार्टाइल 6 से और अपर क्वार्टाइल 18 और क्वार्टाइल 18। अच्छा, अपर क्वार्टाइल 18 है। अच्छा, और इसके बाद मीडियन 20 है और ये लोअर क्वार्टाइल 10 है, अपर क्वार्टाइल 30 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। नाउ द next step now from this check your understanding. From this sort of check of understanding, we are the same, it is the same thing that, but there is a difference in definitely asking the question. So lower quartile बताएंगे बेटा क्या होगा इसमें? लोअर क्वार्टाइल सर पहले मीडियन है। पहले हम मीडियन निकाल लें तो आसानी नहीं हो जाएगी? ऑड है तो इसका मतलब है एक ही मीडियन आएगा, तो वो कौन होगा? क्या आएगा मीडियन बताएंगे? 13.5 भाई मीडियन भाई डिफरेंट देखो, 15 कैट्स हैं, ऑड है तो एक आएगा ना, दो क्यों निकाल रहे हो आप? बताओ। हेलो, आवाज अपना सही करो जरा, माइक सही करें तो प्लीज। 13 चलें, अब लोअर क्वार्टाइल बता दें जरा। नहीं, अपर क्वार्टाइल 16 16। चले भाई, इंटर क्वार्टाइल रेंज 20 3 अपर सर। क्वार्टाइल में, हाँ 3 सर ये ओ सॉरी 3 नहीं 7 अपर क्वार्टर माइनस लोअर क्वार्टर 7 से हाँ ना 7 आएगा ना, 13 थोड़ी माइनस करेंगे। हाँ चले भाई, अब फ्रीक्वेंसी डायग्राम पे जा रहे हैं हम। Suppose we want to plot the following data where each value has a frequency. A suitable representation of this data would be bar chart. अब बार चार्ट पे हम आ रहे हैं और नीचे शू का जो साइज है वो हमने लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी में हमेशा याद रखें ना, हमें वाई एक्सिस पे जाना है, तो हम बार ग्राफ बना रहे हैं, बार चार्ट जिसे कहते हैं, बार ग्राफ भी इसको कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम इसलिए कहते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। और बार ग्राफ ये होता है कि इसके देखो इनके बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स बने हुए ना, हाइट्स बनी हुई हैं, इनके बीच में गैप है, इसीलिए हम इसको बार चार्ट या बार ग्राफ कहते हैं। अदरवाइज ये फ्रीक्वेंसी, ये हिस्टोग्राम बन जाता है। When bar charts have frequency on the y-axis, they are known as frequency diagram. बेटा ये सबको समझ आ गया? अब ये देखिए, आप गौर से देखिए कि क्या ये डाटा, ये जो
हमारे पास नजर आ रहा है, कोई बता सकता है कि क्लास मॉडल क्लास इंटरवल क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रेंज में अकर हो रही है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 15 है, ठीक है। जी 15 जो सर। है सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वो कौन से इंटरवल में आ रही है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा ग्रेटर देन इंटरवल है ये? 100 इक्वल टू ग्रेटर देन 100 इक्वल टू लेसर देन। हाँ सही। हाँ, समझ आ गई बात? लिखा हुआ है, बट सपोज वी हैड डेटा ग्रुप इन द रेंज, व्हाट वुड बी अ सेंसिबल वैल्यू टू रिप्रेजेंट ईच रेंज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम करें, अब आप बनाइए जरा इसको, क्या आप बना सकते हैं? अच्छा, और आप बताइए, इसको बना सकते हैं आप? जी सर। कैसे क्या बनाएंगे? निकालना है फ्रीक्वेंसी? अब इसको कंटिन्यू डाटा करना है, क्योंकि ये रेंज आ गई है। रेंज में हम डाटा जो है ना, वो हिस्टोग्राम बना के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो हम बनाने लगे पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम नहीं बना रहे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब होता है 90 से 100 के बीच में दो है, तो मैंने दो पे डॉट लगा दिया, मैंने क्रॉस लगा दिया। और 100 एंड 110 का इसके बीच में जो आ रहा था वो 15 लगा दिया मैंने। और 8 पे मैं जाऊंगा, देखो इधर 110, फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे? ये बना लेंगे, लाइन बना लेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। और 120 और 130 पे तो हम 0 पे ही लगा देंगे, और 130 से 140 हम लगा देंगे। ज्वाइन द पॉइंट्स अप विद स्ट्रेट लाइंस, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आ गई बात? सर 5 पॉइंट इसलिए क्या क्यों कह रहे बोलते हैं? पॉलीगॉन क्यों बोलते हैं इसको? हैं बेटा? पॉलीगॉन इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो है हम लाइंस ड्रॉ करते हैं क्रॉस करके, उन पे पॉइंट लगा के हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेते हैं इनका। ज्वाइन द पॉइंट विद स्ट्रेट लाइंस इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम ये काम करते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन 5,400 इसलिए नहीं थी कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट इसी टाउन का 800 था। यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, अब पैदा नहीं थे, अब पैदा सही है। 1950 से 2010 तक का ग्राफ बनाया हुआ है, और बेटा समझ आ गई बात? आगे बढ़े। आसान है मुश्किल है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? किसका बता दूं? और सवाल दिखा रहा हूं, आंसर आप निकाल के दीजिए। जी जी बोले, दोबारा बताऊं? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? बेटा फ्रीक्वेंसी पेपर में क्वेश्चन में दी गई है, और ये रेंज भी दी अगर हुई है। निकालने को दे तो हम्म? सर अगर निकालने को दे तो अभी हम वो सवाल कर रहे हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने को बोल रहा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मजीद आगे भी इस तरह के सवाल आएंगे, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्सरसाइजेज ऑन शीट। तो शीट मैंने दी हुई है, उसमें डाटा कुछ इस तरीके का मेंशन था, तो वो उसका क्वेश्चन, उसके आंसर कुछ इस तरीके के हैं। क्योंकि वो डाटा अभी डायग्राम हमारे पास बाद में आने वाली है, तो द होल पिक्चर इज देयर। अच्छा, मीडियन देखें। अब थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं इस टॉपिक को हम थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं, और वो ये है कि जब हमें इस तरह का डेटा दिया जाता है तो हमें क्या पूछा जाएगा, बताएंगे आप? बताएंगे हमें क्या पूछा जाएगा? हेलो? सर हाँ, जब हमें अनग्रुप डेटा मिलेगा इस तरह, तो हमें क्या पूछा जाएगा बनाने के लिए? हमें क्या पूछा जाएगा? ये लिखा हुआ नीचे, हमसे पूछा जाएगा मीडियन, लोअर क्वार्टर, अपर क्वार्टर।
क्योंकि बॉक्स प्लॉट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। अच्छा, अगर टेबल दे दिया जाएगा तो हमें क्या बनाना होगा? हमें क्लास इंटरवल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल के साथ साथ हमें हिस्टोग्राम भी बनाना पड़ेगा, और अगर यही डाटा दे दे तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने पहले ये 4 था, 4 लिखा, तो कोई मुझे बताएगा 10 और 12 में क्यों लिख रहा हूँ? मेरा दिल सबसे भला है। This lecture is being recorded on Teams. This lesson is being recorded on Teams. You all are requested to answer my questions very carefully. सही है? मैडम तो नहीं आ गई सर क्लास पे। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम आप ऐड करते हैं। जैसे ये 4 है तो 4 मैंने लिख दिया एज इट इज। फ्रीक्वेंसी का तो बताया सर कैसे निकलती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? 4 है, 4 में बेटा 6 ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे निकलेगी बेटा बताएं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 में 6 ऐड करें तो क्या आएगा? 10। 10 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 12। इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकते हैं। इस वक्त ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पेपर में कहा जाता है स्मूथ कर्व। तो आप क्या करेंगे? आप स्मूथ कर्व जो है इसमें बना देंगे, इस पे ड्रॉ कर देंगे स्मूथ कर्व, ठीक है। अब ये जो है इंटर क्वार्टाइल ब्लॉक, ये चूंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं बताया। अब मुझे बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मॉडल क्लास इंटरवल बताएं पहले, मीडियन फिर हम बताएंगे आपको क्या होगा, तो मीन कैसे निकलेगा ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बताइए सर मॉडल क्लास इंटरवल है लास्ट वाला 10.05। वेरी गुड, ये तो आपने सही बता दिया, वेरी गुड। अगला बताएं जरा। मीडियन तो क्लास ये तो इंटरवल नहीं है। समझा है मेरे को, थोड़ा मैं लेट आया मीडियन मैं बाद में बताता हूँ, मॉडल आप पहले क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दो मुझे। सर पहले वाली अब की यही 1 कर 5 है। 1 होगी भाई पहले वाली की, सेकंड की 5 है। क्या आ रही है बेटा बताएं? 1 सर। 1 दूसरे बताएं। 5 5 तीसरा। 15 वेरी गुड, और ये वाला? 15 और 15 अच्छा 32। टोटल कितना हो गया ये हाँ। बता दो मुझे। ये कैसे निकालेंगे सर? ये टोटल किस कितना हो गया? मेरे को बता ही नहीं दे तो मैं क्या पापड़ बेलने आया 53 हूँ सर। 53 53। 53। अच्छा 53 हमारा ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे? 53 में +1 करो, हमें मीडियन 54 निकालने डिवाइड बाय 2 और वो क्या मिलेगा हमें? +1 डिवाइड 26 बाई 26 30। नहीं, ये टोटल 26 मिलेगा ना। अरे मैं आपको बता रहा हूँ हमारा टोटल कितना आया? 32 आया ना। नहीं सर 53 आया। 53। ये बेटा इनको प्लस नहीं करना, हमने हमारा जो 32 आया ना टोटल, ये टोटल है हमारा। हमने अच्छा पूरी सर फ्रीक्वेंसी को प्लस किया तो हमारा टोटल 32 आया। 32 में +1 करें, 33 33 को 2 से डिवाइड करें क्योंकि मीडियन निकालने का बोल रहा है। 16.5 16.5 अब आप मुझे बताएं 16.5 कौन सी मॉडल क्लास में आ रहा होगा? इसमें तो नहीं आ रहा, इसी में आ रहा होगा। लास्ट वाली में आ रहा है। 10.5 तो इसी में आ रहा होगा, तो मैंने यही लिख दिया। अच्छा, अब मीन सही। निकालने का तरीका डिफरेंट है। तो मीन निकालने का तरीका ये है कि आप ये जो इसकी मिड वैल्यू निकालें, इन दोनों को प्लस करें 9.6 और इसको, तो आपका मिड वैल्यू, इसकी भी मिड वैल्यू निकालें प्लस करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को भी प्लस करके 2 से डिवाइड, इनको भी प्लस करके 2 से डिवाइड, ठीक सर है। मीडियन क्लास समझ
मॉडल क्लास नहीं है ऐसे मुझसे। नहीं नहीं, वो तो अलग हो गया ना हमारा। अब इन सब की मीडियल वैल्यू निकालनी है। मीडियल वैल्यू निकाल के हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है। एक लंबा मेथड है, क्योंकि हम अगली क्लास में इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अलग से मैं इसका टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो जैसे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 पे 9.6 से लेकर 9.7 तक 1 है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले बनानी है, फिर ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है? नहीं सर, आपसे एक मैं सवाल पूछा, आप सब बता दे रहे हैं। जी जी जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पीछे कैसे निकली सर, पीछे वाले क्वेश्चन में? पीछे वाले में हमने वही तरीका अप्लाई किया है कि जैसे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है ना 1, तो 1 को हम 1 लिख देंगे, ठीक है? और 4 है तो उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसमें फिर 15 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है? और फिर उसमें 17 ऐड कर देंगे तो 32 आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आप इनको प्लॉट करते जाएंगे। दूसरे को मैंने तीसरे को प्लॉट किया, ठीक है? अब मैंने ये सारा प्लॉट किया और इन सारे पॉइंट्स को मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर लिया। याद रखें, ये हमने स्ट्रेट लाइन उससे किया है, लाइन से, रूलर से। लेकिन पेपर में आता है कि पेपर में ये आता है कि आपने क्या करना है, आपने कर्व बनाना है। तो आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी। आप भले स्ट्रेट लाइन बना लें, लेकिन उसके बाद आप पेंसिल से कर्व बना दें सबको, और फिर जो स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसको खत्म कर दें। अच्छा, अब कम्युलेटिव मीन्स क्या होता है? रनिंग टोटल। मीन इसकी टोटल जो हमारे पास होती है ना, वो करते हैं। अब आप मुझे बताइए इसका मीडियन कैसे निकलेगा? अब 32 है टोटल, 32 का हाफ क्या होता है? अब हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, जो हमने पहले निकाला था। 32 का हाफ क्या होता है? 16 पे 16 अपने यहाँ पे जाएं, देखें, यूं जाएंगे 16 पर, नीचे देखें कि डाटा वही आ रहा है जो हमने वहां पे फाइंड किया। लोअर क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है? इसी 32 को +1 करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.9 आएगा कुछ करके, या 8 के करीब करीब। तो वो जो नीचे डाटा आएगा वो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अपर क्वार्टाइल में क्या होगा? 3/4 से करेंगे तो देखो 24 आया। 24 से फिर आप डाटा नीचे लेके आएंगे, and then you will find this value. Now what is interquartile range? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? इन दोनों को क्या कर देंगे हम? अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को क्या कर देते हैं? माइनस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.18। इसको बेटा आपने लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैसे निकाला सर? लोअर क्वार्टाइल हमने इस तरीके से निकाला है कि लोअर क्वार्टाइल में हम 32 टोटल है ना हमारे पास, जी तो लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4, यानी 25%। लोअर क्वार्टाइल मीन्स 25%, ठीक है? तो 25% जब हम निकालेंगे तो 25% जो हमें मिलेगा ना उसका, वो ये होगा। जैसे मैंने ये मिडल, ये मैंने इसकी जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली, ये देखो, ये तो निकाली। अब मीडियन तो ये आ गया। 16 को इसको डिवाइड किया, हाफ होता है 16। लोअर क्वार्टाइल में क्या करते हैं हम? उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने से हमें मिलता है 8 मिलता है हमें। 8 पर हम आके फिर हम उसको प्लॉट कर दिया। ये प्लॉटिंग हुई है पहले सबसे, फिर हम उसका डाटा देखते हैं 8 पे। अब अपर क्वार्टाइल का मतलब होता है 3/4। 3/4 का मतलब है तकरीबन इसका 32 का 3/4 निकालें तो तकरीबन बनना 24। 24 से फिर हम नीचे आएंगे और डाटा को हम चेक करेंगे कि हमारा कितना डाटा आ रहा है, ठीक है? और फिर फाइनली इंटर क्वार्टाइल रेंज में ये होता है, इंटर क्वार्टाइल में हमारे पास ये होता है कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज में माइनस कर देते हैं अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। जब हम ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है।
पेपर में ये ग्राफ भी दिया हुआ होता है, ये टेबल भी दिया होता है. You have to make cumulative frequency column, plot the points on the graph, then draw a smooth curve and join all corresponding points. After that, you have to find out very important, 4 important things that are median, lower quartile, upper quartile, and interquartile range. You have to find all these later on. अब बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें देखें, ये पेपर में फर्ज करें, ये पेपर में भी दिया है, ये कम सम टाइम ये पेपर में गिवन है. This is the same as that we have done in our previous class, previous slide. तो रनर्स क्या है बताएगा कोई? एस्टिमेट हाउ मेनी रनर्स हैड अ टाइम लेस देन 10.5 सेकंड, 15 सेकंड. तो कौन बताएगा कि 10.5 सेकंड? जरा नीचे देखें, 10.15 सॉरी 10.15 हमारा यहाँ पे कहीं आ रहा है, इधर करके यहाँ पे 10.15 मेरे ख्याल से या यहाँ पे आ रहा है तकरीबन. तो हमारे रनर्स लेस देन कितने होंगे? तो ये देख लें, हमारे पास यहाँ पर 28 के करीब कुछ रनर्स आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं हमारे पास रनर्स. अब कौन बताएगा मुझे कि एस्टिमेट हाउ मेनी रनर्स हैड अ टाइम मोर देन 9.95 सेकंड? तो 9.95 कहाँ पे होगा? 9.95 में यहाँ पे लगा लो. अब इसके बाद वाले जितने भी है ना, वो मेरा आंसर है, मोर देन. तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 में से मैं ये सारा माइनस कर दूंगा. 32 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा. अराउंड देखें 6 या 5 माइनस हो रहा है, तो 8 माइनस हो रहा है. 6 होगा. 8 माइनस हो रहा है सर वापस 8 माइनस, क्योंकि मोर देन लिखा हुआ है ना, मोर देन. तो इस डेटा से आगे जितने भी है वो हमारा आंसर है, तो पीछे वाला सारा माइनस कर देंगे. 26 रनर कैसे है? चार्ज वापस दोबारा बता देता हूँ. एस्टिमेट हाउ मेनी रनर्स हैड अ टाइम लेस देन 10.15 सेकेंड्स. तो बेटा पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि 10.15 सेकेंड्स कहाँ पे है? 10 पॉइंट कुछ इस तरह पे आएगा, यहाँ तक आ रहा होगा ये तकरीबन. जी सर. हाँ बोलो, ये आया. अब उन्होंने बोला है लेस देन, इसका मतलब है कि इसके नीचे जो भी हमारा आंसर है वो है. तो 32, इसके बाद वाला जो भी, यहीं पर आप काउंट कर लें, ये 26 तक आ रहा है यहाँ पर, ये 26 लिखा हुआ है यहाँ पर. अच्छा ठीक है सर. अब समझ आ गया? अब आप मुझे इतना बता दें कि एस्टिमेट हाउ मेनी रनर्स हैड अ टाइम बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट है कि 9.8 से 10 के बीच में कितना है. तो आपने बस वो काउंट करना है. तो 9.8 यहाँ पर है इधर, और 9 और 10 यहाँ पर है. इसका मतलब है ये 3 माइनस कर दें, 3 और 10 सेकंड कहाँ पर होगा? 10 यहाँ पर होगा. 12, तो 12 में से मेरे ख्याल से 3 तक माइनस कर दें, 9 आ जाए. करके देखें क्या आंसर आ रहा है. 9 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि ये 11 आ रहा है ना यहाँ पर, ये तो 10 आ गया, तो इस यहाँ पर 11 आ रहा है, 12 नहीं 11 है. तो 11 में से ये 3 माइनस कर देंगे, इसके बीच में हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा. सही है सर. अगर 3 करते तो गलत होता. नहीं, देखो ये जो है ना, जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं ना, तो इसमें एस्टिमेट का भी ऑप्शन होता है. तो अब रनर जो हैं वो रनर कोई डेसिमल में तो आ नहीं सकते, तो हम एस्टिमेट ही करके लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एस्टिमेट. अगर आपने 12 में से 3 निकाल दिया तब भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा, कोई मसला नहीं है. क्योंकि एस्टिमेट ही कर रहे होते हैं ना, तो ग्राफ के अंदर जब वो बना हुआ होता है ना,
ठीक है, समझ आ गई बात कि नहीं? समझ आ गई बात? तो दिस आ इज, गई सर। ये जो हमने इम्पोर्टेंट चीज की है अभी ग्राफ के ऊपर, एक थॉरो हमने इसकी प्रैक्टिस की है कि पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे थे कर्व, अब वो कर्व बना के दिया हुआ है या वो बोलेगा बना दो, उसके बाद दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पूछेगा ना ग्राफ के ऊपर, मोर देन, लेस देन और बिटवीन, these are very important questions in cumulative frequency curve, जो कि आपको जो है ना वो करने होंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? सही है, सॉरी भाई, क्या मतलब क्या है? 1 घंटा 20 मिनट लेट आया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। देखें, अब आपके पास ये लाइन स्केच वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, एक फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। कम्युलेटिव में तो हम ऐड करते जाते हैं और उनको वो करते जाते हैं। इसमें हमने इन दोनों को वर्सेस कर दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वर्सेस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे कि स्टूडेंट ऑलवेज गेट देम मिक्स्ड अप, क्योंकि ये लाइन अप होता है, स्टूडेंट इसको मिक्स अप कर देते हैं। तो अब मुझे कोई बताएगा कि पहला पॉइंट कहाँ पे आने वाला है? आ गया, उन दोनों का पॉइंट, उन दोनों का वो आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आ गया। आप दूसरा प्लॉट करते हैं सेम, लेकिन दोनों का देखो डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, देखा? तीसरे में 22 में आ गया हमारे पास, हमने 9.9 से 10.05 तक इसको प्लॉट किया तो हमारा वहां पे पहुंच गया, जबकि लाइन ग्राफ में देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वहां चला गया। अब मुझे कौन बताएगा 32 में ये कहाँ जाएगा लाइन में? ये देखो, ये 32 है क्योंकि हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला हमने जो है ना वो लिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव में नहीं ली है हमने। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा, अब ये वाला पॉइंट हमने प्लॉट किया यहाँ पर। अब देखो इस दोनों में फर्क क्या होगा प्लॉट। अब इसको हमने ये आखिरी लाइन में स्केच, ये स्केचिंग लाइन, ये हमने इसको बनाया। नंबर 4 है तो 5 पॉइंट यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये दूसरा वाला एक्स जो लगा है, ये दूसरा वाला एक्स जो लगा है सर, ये किस वजह से लगा? बेटा दूसरा वाला एक्स किस में, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो? जी सर। तो कम्युलेटिव पहला वाला तो पहला लग गया ना। कौन से नंबर पे है सर? 9 पॉइंट, देखो 9.6 से 9.7, तो आप शुरू भी तो देखो ना, शुरुआत भी तो करनी है हमने 9.6 से 9.7, तो शुरू में हम इसी वजह से ये 2 लगा रहे हैं। जो अगर हम मैं 9.7 से शुरू कर दूं तो फिर ये 9.6 कहाँ जाएगा? उन्होंने बोला 9.6 से थोड़ा सा आगे चले, तो मैं 9.6 से आगे जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये किया है। उसमें बात समझ शुरुआत आ नहीं रही है? करनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? अभी हमने ये बना दिया, लेकिन पेपर में हम इसको पेपर में हम इसको एक कर्व बना देंगे जो कि हमारे पेपर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैंने उसे रूलर से मैंने उनको स्ट्रेट लाइन करके ज्वाइन कर दिया, लेकिन जब पेपर में कहा जाएगा ड्रॉ स्मूथ कर्व, तो आपको स्मूथ कर्व बनाना होगा, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी होगी। हाउएवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सिर्फ लाइन स्ट्रेट बनानी है, जहाँ तक जा रही है। कभी कभी लाइन नीचे भी आ जाती है तो आपको उस तक भी पहुँचना होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्या, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो, हमारे पास लास्ट की फ्रीक्वेंसी ऊपर 17 गई थी तो 17 पे हमारा ये पॉइंट पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद फिर हमारा 10 पे आ गया, तो इस वजह से ये हमारा ग्राफ नीचे चला गया। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर इसके बाद वो डाटा दिया हो 25 दे दें तो ये और ऊपर चला जाएगा, लेकिन 10 के बाद अगर ये 2 पे आ जाए तो फिर हमारी लाइन और नीचे आ जाएगी।
तो इस तरीके से, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है, जो लाइनों का होता है, ये बहुत कम पेपर में आता है, जबकि फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और मोर देन, लेस देन, बिटवीन, और फिर वो जो मैंने पहले बताया क्वार्टाइल्स, ये सवाल पेपर में कंपलसरी सवाल होते हैं जो आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी एग्जांपल हमने कर ली हैं और हमारा लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे। जो मिसिंग है स्टूडेंट वो भी इसको देख लेंगे किस तरीके से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनाए हैं। हम आगे भी बढ़ते हैं मज़ीद, और हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से हम मज़ीद करेंगे। अब देखिए ज़रा, ये जो सवाल है मेरे पास, अब मुझे बताइए द टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट ऑफ 40 बुशेस, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन हमें बनाना है ड्रॉप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, लेकिन मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी चाहिए। तो वो क्या होगा बताइए? जी बोले। यस सर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले? 5। उसके बाद 5 और ये क्या नंबर है? 18, तो ये 23 22 23 23 5, और उसके बाद 16 क्या आएगा? 16 39 39, उसके बाद 40 आ गया। आप फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बनाए तो आप मेरे को देखो 170 से 175 तक 5 होगा, लेकिन अब एक बात बताओ, 170 भी है फिर 175 भी है तो 5 है, तो हमारा ग्राफ कहाँ से जाएगा? 170 से जाएगा, और फिर 170 से 180 23 है, तो 170 से 180 23 है। अच्छा, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर 175 होगा या 180 होगा, 185 होगा, 190 होगा, ये मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये 23 है, ठीक है, तो अब 23 तक पहुंचना है, लेकिन इसमें से मैं माइनस करूंगा 20 तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये देखो 180 तक 23 हो जाना चाहिए, तो 180 तक मैं 23 पे पहुंच गया यहाँ पे, फिर 185 तक 35 हो जाना चाहिए, तो 135 तक 35 हो गया, ये रहा। फिर 190 तक 39 होना चाहिए, 180 तक 39 ये रहा, ठीक है, और फिर 195 तक 40 होना चाहिए, तो 195 तक 40 हो गया। इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन पेपर में फिर मैं बता दूं कि सवाल आएगा कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। आपने कैलकुलेट करना है, आपने ड्रॉ करना है, ड्रॉ स्मूथ कर्व, ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, स्मूथ कर्व आता है, यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन ड्रॉ स्मूथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कर्व भी आ सकता है, कर्व। अच्छा, अब मुझे लास्ट क्वेश्चन बता दें, लिखा हुआ यूज टू फाइंड द एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन कैसे आएगा बेटा जरा बताना? अगर मैं 40 को +1 करूं तो 41 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 20.5। 20.5 बेटा, यहाँ से जरा बताओ कितना आने वाला है? 20.5 कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से जाके नीचे आएगा, तो नीचे कितना आ रहा है? 179, तकरीबन 179 इसका तकरीबन 179 मिलियन आ रहा है इसका। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से हम सवाल करेंगे। आपके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसकी पिक्चर ले लें आप, इसकी पिक्चर ले लें। मेरे ख्याल से क्लास कितने बजे तक है हमारी? हमारी क्लास मेरे ख्याल से 11:50 तक है ना? सो नाउ आई थिंक द क्लास, हमारी क्लास 11:50 तक है ना? तो हमारी क्लास अभी एंड होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी आप इसकी पिक्चर ले लें और इसको सॉल्व करके आपने टीम्स पे मुझे इसको अपडेट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपने इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।